Pythagoras theorem. Before starting this particular topic, कुछ बातें सीख लें. The topic that we are going to start is actually related to the main topic, that is trigonometry. Trigonometry. In trigonometry, अगर मैं इस टर्म को trigonometry को bifurcate करूं तो it's the combination of two words, that is troy and geometry. It is troy and geometry. और अगर आप itself सिर्फ geometry की बात करें तो geometry is about the geometrical shapes like circle, like triangle, like rectangle, like square. There are number of geometrical shapes ना. So it means that आपने geometry junior classes से already पढ़ते हुए आ रहे हैं. And when it comes to trigonometry, so trigonometry simply means a geometry that is applicable on three-sided figure. Try का मतलब three होता है ना. Troy simply refers to three, so it means a geometry that is applicable on three-sided figure. So three-sided figure की अगर मैं बात करूं तो obviously three-sided figure is what? Triangle. Yes or no? Three-sided figure की अगर आप बात करें तो three-sided figure triangle ही तो होता है. और अब मैं triangle की कुछ types की बात भी कर लेता हूँ. Do you remember how many types of triangle are there? Anyone? A triangle Three. having Isosceles, equal, a triangle. equilateral, scalene. Okay. A triangle having all sides equal, a triangle having two side equal, and a triangle having none side equal. So it means these are the main three types of triangle that you people used to study. तो ये देखो ना, अगर तीनों साइडें इक्वल होंगी तो then you consider the following triangle as equilateral triangle. Equilateral triangle. A triangle having two side equal is called as isosceles triangle. Yes or no? Isosceles triangle. And a triangle having none side equal is considered as scalene. Scalene triangle. अच्छा, इनफैक्ट आपने एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्राइंगल को सेपरेटली डिस्कस किया था. अ ट्राइंगल हैविंग one angle exactly 90 degree. Remember? A triangle having one angle exactly 90 degree. What that triangle is called? Right angle triangle. Right angle triangle. So भाई right angle triangle scalene and equilateral. अगर मैं जनरली ट्राइंगल की बात करूं तो ट्राइंगल्स में हमारे पास कैलकुलेटेबल स्टफ क्या है, मतलब एक ट्राइंगल वेदर किसी भी टाइप से बिलोंग करता हो उसमें हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं. एक जनरली अगर बात करूं तो भाई अगर एक मैं रैंडमली आपके पास एक जनरल ट्राइंगल भी ड्रॉ कर रहा हूँ इररिस्पेक्टिव वो कौन सी टाइप से बिलोंग करता है, उस ट्राइंगल में आप इन जनरल उसकी लेंथ, थ्री साइड्स की लेंथ and three interior angles and its parameter and one more thing, that is its area. So these are normally 8 parameters that you are going to calculate for any of the triangle irrespective वो कौन सी टाइप से बिलोंग करता है. मेक सेंस? ये कैलकुलेट कर रहे होगे ना, तो एग्जामिनर आपसे इन्हीं कुछ चीजों में से कैलकुलेट करा रहा होता है. अब बात कर लेता हूँ कि हाउ मेनी टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाउ मेनी सब ब्रांचेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री दैट वी हैव टू डिस्कस. तो भाई ट्रिग्नोमेट्री आपके सिलेबस में दो पार्ट में डिवाइड हुई है. नंबर वन पार्ट इज सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, एंड सेकंड पार्ट इज फर्दर ट्रिग्नोमेट्री. अब सर व्हाट इज सिंपल, व्हाट इज फर्दर? फर्दर के नेम से ही समझ में आ रहा है कि भाई कोई डिटेल बात होगी फर्दर ट्रिग्नोमेट्री में. यस, फर्दर ट्रिग्नोमेट्री इज डिटेल वन. सो अगर मैं बात कर लूँ सिंपल एंड फर्दर ट्रिग्नोमेट्री की बाइफर्केशन की, तो भाई क्लास 9 में आप लोग सिंपल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे एंड दिस फर्दर ट्रिग्नोमेट्री इज द टॉपिक ऑफ क्लास 10th. तो भाई सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में सर हम क्या क्या पढ़ रहे होंगे? If I'm simply talking about simple trigonometry, the simple trigonometry में you are dealing with all the rules that are associated to right angle triangle. तो भाई राइट एंगल ट्राइंगल एसोसिएटेड सारे ही रूल्स सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में तुम लोग पढ़ रहे होगे. एंड इक्विलैटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस, स्केलिन, इन सब से एसोसिएटेड रूल यू विल बी डिस्कसिंग इन फर्दर ट्रिग्नोमेट्री. सो
without wasting any time, let's move towards this right angle triangle associated stuff. तो भाई अब आते हैं फाइनली कि ट्रिग्नोमेट्री में आपने एक सब टॉपिक पढ़ना है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम, एंड दिस पाइथागोरस थ्योरम इज only and only applicable on right angle triangle. फिर देखिए ना, मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल सबसे पहले आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ. दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल. Right angle triangle में this angle is 90 degree. The side that is opposite to 90 degree is the greatest side. अगर आप लेंथ के पर्सपेक्टिव से बात करें तो 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली ये वाली साइड इज कंसिडर एज ग्रेटेस्ट साइड. तो दिस ग्रेटेस्ट साइड इज एक्चुअली नेम एज हाइपोटेन्यूज. रिमेंबर, पढ़ा है ऐसा कुछ? दिस ग्रेटेस्ट साइड इज नेम एज हाइपोटेन्यूज. अच्छा, जूनियर क्लासेस में Yes. मे भी आप लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा हो. आप जूनियर क्लासेस में अननोन को कैलकुलेट करने के लिए इसको ऐसे नेम करते हो कि भाई ये ग्रेटेस्ट साइट है, इसको ए नेम कर दो, इनको बी एंड सी नेम कर दो. रिमेंबर, या इसको सी नेम Yes. कर दो, रिमेनिंग टू को ए एंड बी नेम कर दो. इट्स सिंपली द लेबलिंग. इट्स सिंपली द Yes. लेबलिंग फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग. तो भाई अब हम लेबलिंग यहाँ पे इस राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स को क्या कर रहे होंगे, मैं आपको बताता हूँ. देखिए भाई, this side is considered as hypotenuse, the greatest side. Hypotenuse. So we have to make this in the copy. Yes, you have to write each and everything because we will be continue this topic on Monday, inshallah. Okay. This greatest side will be considered as hypotenuse. The side that is this bottom one is considered as your adjacent. Is considered as your adjacent. इस साइड को बेस भी कह रहे होते हैं. इसको मैं एडजेसेंट कहूँ, बेस कहूँ, एक ही बात है. दैट इज लेबल्ड बाय कैपिटल ए. एंड दिस साइड इज कंसिडर एज योर ऑपोजिट, ऑल्सो कॉल्ड एज परपेंडिकुलर. आप इसको कुछ ऑथर्स को देखेंगे वो ऑपोजिट कह रहे होते हैं, कुछ इसको परपेंडिकुलर कह रहे होते हैं. तो बाय द वे मैं ये लेबलिंग यूज कर रहा हूँ, दैट इज हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट एंड ऑपोजिट. सर इज इट पॉसिबल कि ये वाली साइड को एडजेसेंट लेबल कर दें? यस. कुछ केसेस में आप देखेंगे मैं इस साइड को एडजेसेंट लेबल कर रहा हूँ, तो वो क्या पैरामीटर होगा जिसको देख के मैं कभी इसको एडजेसेंट कभी इस वाली साइड को ऑपोजिट कह रहा हूँ? By दिस the इज समथिंग, right या angle. this is something that we are going to discuss when we are finding angles and all. आपके पास किसी न किसी साइड के साथ एंगल गिवन होता है, उस अननोन एंगल को हम लोग नॉर्मली इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. दिस सिंबल इज कॉल्ड एज थीटा. तो बहरहाल अभी तो मैं पाइथागोरस थ्योरम डिस्कस कर रहा हूँ, तो आई एम नॉट इनकॉर्पोरेटिंग दिस एंगल. जब एंगल की बात होगी तब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि विच साइड इज कंसिडर्ड एज वो ऑपोजिट एंड विच इज एडजेसेंट. लेकिन बेटा एक बात तो मेक श्योर है, द ग्रेटेस्ट साइड दैट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू 90 डिग्री एंगल विल कंसिडर एज हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज तो हमेशा ये ही रहेगा, चेंज नहीं होगा. तो इफ यू गाइस रिमेंबर, आपने पाइथागोरस थ्योरम में ये पढ़ा था कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर is equivalent to sum of the square of remaining two sides, that is opposite square plus adjacent square. This simple rule is called as Pythagoras theorem. Remember? ऐसे ही था? Agree? And this Yeah. Pythagoras theorem is applied to find unknown sides of right angle triangle. देखो एक बात मेक श्योर कर लो कि पाइथागोरस थ्योरम की बात कर रहा हूँ तो दैट इज सिंपली रिलेटेड टू सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से एसोसिएटेड है. और सिंपल ट्रिग्नोमेट्री मींस जो रूल्स यहाँ पे पढ़ रहे हो दे आर ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल ऑन राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो इन रूल्स की बात होगी, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा तो इन रूल्स की बात नहीं होगी. तो यहाँ पे एक सेंटेंस भी लिख देते हैं, ओनली एप्लीकेबल ऑन, ओनली applicable on right angle triangle. ओके, तो राइट एंगल ट्राइंगल पे ये रूल एप्लीकेबल होगा, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम. ओके, अब कुछ बेसिक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि आपके पास पाइथागोरस थ्योरम एसोसिएटेड होते हैं. बहुत ही बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन. लेट मी जस्ट ड्रॉ द फिगर, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस.
भाई फिगर कैसी है? फिगर इज लाइक दिस and you are supposed to find the unknown side. This side is 10, this side is 6. You are supposed to find this one. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अब अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लेबलिंग कर लेते हैं. राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, दिस विल बी कंसिडर्ड एज hypotenuse. Agree? This is considered as adjacent. This is opposite. Pythagoras theorem कहता क्या है? Hypotenuse square is equivalent to opposite square plus adjacent square. What's the value of hypotenuse in the following situation? बोलो क्या वैल्यू होगी? 10. 10. And opposite value is something that we are supposed to find. Adjacent की value given as 6. So 10 square comes out to be 100. Opposite square will be as it is. This becomes 36. 36 shift there becomes negative 36 is equivalent to opposite square. 64 is equals to opposite square. So for finding the value of opposite, you have to apply 8. square root on both sides. अब देखो opposite की value comes out to be 8. अच्छा, कुछ स्टूडेंट यहाँ पे प्लस माइनस साइन अप्लाई कर रहे होते हैं, तो भाई प्लस माइनस साइन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज सिंपली लेंथ. आपने तो लेंथ कैलकुलेट करी है ना. यस, राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करके यू हैव फाइंड द अननोन साइड. लेंथ नेगेटिव नंबर थोड़ी होती है. लेंथ मस्ट बी अ पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव नंबर के अकॉर्डिंगली आप उसको सॉल्व कर लेते हैं. अग्री? मेक सेंस? आसान सी बात है, आगे बढ़ो. Yes. ओके भाई, अब एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं. भाई ये वैल्यू अभी हमने जो सॉल्व करी है, ये पॉजिटिव होल नंबर वैल्यू आ रही है. भाई अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो आप उसको या तो रूट में लिख देते या डेसिमल फ्रैक्शन, जो भी पॉसिबल वैल्यू होगी उसमें लिख सकते थे. नाउ आई एम राइटिंग वन मोर क्वेश्चन, उसके लिए बात कर लेते हैं. फिगर इज समवट लाइक दिस, in which angle 90 is being labeled for you. ये वाली side is given as 13, ये वाली side is given as 13, this side is given as 12, and you are supposed to find this one. अब भाई लेबलिंग करा दें. अगर अब भी आप प्रॉपर्ली लेबलिंग करें तो दिस इज कंसिडर एज हाइपोटेन्यूज, दिस इज कंसिडर एज एडजेसेंट, एंड दिस इज ऑपोजिट. देखो ऑपोजिट एडजेसेंट लेबल करना नॉट अ बिग डील. अभी जब हमारे पास एंगल नहीं गिवन है, रादर विद दिस साइड, रादर दिस विद दिस साइड, तब एडजेसेंट ऑपोजिट आप किसी भी साइड को कंसिडर कर ले, नॉट अ बिग डील. बात समझ रहे हो? लेकिन हाइपोटेन्यूज की मेजरमेंट, हाइपोटेन्यूज की पोजीशन तो फिक्स है. The side that is opposite to 90 degree is considered as your hypotenuse whose length is equivalent to 13. सुन रहे हो? अब भाई अननोन कैलकुलेट करा दो बच्चा, कैसे करोगे? As per Pythagoras theorem, hypotenuse square is opposite square plus adjacent square. बता दे. This is 13 square, opposite is 12 square. नहीं, opposite is something that we have to find, and adjacent value is given as 12. So this is 12 का whole thing square. 13 square comes out to be 169. 12 square is 144. What comes out to be the value of opposite? Anyone? 5. 25. और फिर फाइनली यू हैव 5. टू अप्लाई स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट अप्लाई कर लोगे तो फाइनली ऑपोजिट वैल्यू कम्स आउट टू बी 5. इजी वन, आसान से क्वेश्चन है, कोई मुश्किल कोई सवाल? अग्री? Yes. ओके भाई, यहाँ तक भी होपफुली सबको क्लियर हो गया होगा. चलें एक सिंपल सा क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, देन वी विल मूव टुवर्ड्स अ डिटेल वन. एक वेरी सिंपल क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, देन विल मूव टुवर्ड्स अ डिटेल वन, जिसमें आपके पास वैल्यू डेसिमल में आ रही होगी. एक उस स्टाइल का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन इज लेट्स से लाइक दिस. This angle given as 90 degree, this side let's say given as 10, this side is given as 5, and you are supposed to find this one. आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर को लेबल कर लिया कि दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज माय ऑपोजिट, एंड दिस इज माय एडजेसेंट. आपकी लेबलिंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपके पास गिवन है. इन द फॉलोइंग केस आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो भाई हाइपोटेन्यूज वैल्यू इन द फॉलोइंग केस, हाइपोटेन्यूज वैल्यू इन द फॉलोइंग केस, हाइपोटेन्यूज वैल्यू क्या लिख दूं मैं इसमें? 10 स्क्वायर, ऑपोजिट की वैल्यू 5 स्क्वायर, और ये हो जाएगा एडजेसेंट स्क्वायर. तो 10 का स्क्वायर कम्स आउट टू बी 100, 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस एडजेसेंट स्क्वायर.
तो भाई 100 में से 25 सब्ट्रैक्ट कर लें, गिव्स यू द वैल्यू ऑफ एडजेसेंट स्क्वायर, दैट इज 75 इज इक्वल टू एडजेसेंट स्क्वायर। अब देखो एक बात क्लियरली समझना, एडजेसेंट स्क्वायर की वैल्यू आई है, आपको तो एडजेसेंट कैलकुलेट करना था, तो अगेन अप्लाई स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से रूट विल बी कैंसिल, तो एडजेसेंट की वैल्यू कम्स आउट टू बी स्क्वायर रूट 75। अब देखिए दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर वन, अगर यही क्वेश्चन पेपर वन में आया है सॉल्व करने के लिए, तो आप यहीं पे अपने फाइनल आंसर को कंसिडर कर लेंगे, दिस विल बी कंसिडर एज फाइनल आंसर फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन, बिकॉज कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है ना, और 75 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो दिस विल बी कंसिडर एज योर फाइनल आंसर। अच्छा व्हाट इफ अगर कैलकुलेटर अलाउ होता, तो भाई कैलकुलेटर अगर अलाउ होगा तो आप अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लेंगे, भाई कैलकुलेटर में सॉल्व तो करो, स्क्वायर रूट 75 की वैल्यू क्या आ रही है, दिस वैल्यू विल बी कमिंग आउट टू बी अराउंड 8.6 और 7, ऐसे कुछ वैल्यू आ रही होगी, देख ले। स्क्वायर रूट 75 को कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर में, तो दिस कम्स आउट टू बी 8.6 या 7, ऐसे कुछ वैल्यू आ रही होगी, देख ले। तो दिस कम्स आउट टू बी 8.66। एम आई क्लियर? पक्का पक्का अग्री? अग्री? Yes. ओके भाई, Yes. नाउ वन मोर क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू दिस वन मोर क्वेश्चन। अब देखिए फिगर आपके पास जो ड्रॉ हुई हुई है, दैट फिगर इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब के जो फिगर ड्रॉ करने जा रहा हूँ, दैट फिगर इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो सर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगी तो क्या होगी भाई? देखो फॉर एग्जांपल एग्जामिनर ने एक दफा ऐसी फिगर ड्रॉ करके दे दी, मुझे बता सकता है कोई नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉलोइंग फिगर? एनीवन? Trapezium. ट्रेपीजियम, एक्सीलेंट। अच्छा दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल ना, क्वाड्रिलेटरल होती है फोर साइडेड फिगर, वन साइड, टू साइड, थर्ड साइड एंड फाइनली दिस इज योर फोर्थ साइड। तो भाई ऐसा क्वाड्रिलेटरल, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ओनली टू साइड्स आर पैरेलल टू वन अनदर, कोई भी दो साइड पैरेलल हो तो दैट शेप इज कंसिडर्ड एज क्वाड्रिलेटरल। अच्छा भाई इन द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल एग्जामिनर ने लेबल क्या करके दिया? एग्जामिनर हैड लेबल लाइक दिस कि दिस इज 4, एग्जामिनर ने ऐसा लेबल कर दिया, दिस इज 4, this is 3, this is uh this is 5, this is 8 and this is x। x की वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है फॉर द फॉलोइंग फिगर। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि भाई अगर x कैलकुलेट करना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास इस फिगर को राइट एंगल ट्राइंगल में ब्रेक करना पड़ेगा, बिकॉज राइट एंगल ट्राइंगल पे वो रूल अप्लाई होते हैं, सिंस दिस शेप पहली बात तो नॉट अ ट्राइंगल, और अगर तुम ट्राइंगल में ब्रेक करो तो मे बी तुम ऐसे ट्राइंगल में ब्रेक कर सकते हो। क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा? यस और नो? हाँ बोलो। Yes. अच्छा व्हाट अबाउट दिस वन, कि Yes. ऐसे ट्राइंगल में ब्रेक कर सकते हैं, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा? बोले यस। Yes. But the problem is you have to break this Yes. shape in such a way कि ये वाली साइड that is x in the falling shape वो इन्वॉल्व हो। तो ऐसी कंडीशन में आप इस ट्रेपीजियम को, इस क्वाड्रिलेटरल को कैसे ब्रेक करेंगे? कैन आई ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू दिस वन? इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दूं, और वो लाइन अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो आई एम ट्राइंग टू ब्रेक द फॉलोइंग शेप लाइक दिस इन द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। ये कॉमन सेंस की बात है ना कि भाई अगर इधर 90 ड्रॉ हो रहा है तो ऑब्वियसली आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो दिस विल आल्सो बी 90। अब सर ऐसा कर क्यों रहे हैं, बात समझो भाई। दिस लेंथ इज गिवन एज व्हाट? क्या आपके पास गिवन है इसकी वैल्यू? 5। 5. व्हाट अबाउट दिस वन? 8। 8. ऐसा ही है। मुझे बता सकते हो कि अगर मैं ब्रेक करूं तो व्हाट अबाउट दिस लेंथ? ये लेंथ आपके पास 3. क्या होगी? This one, 3. 3। 3. अच्छा 3 कैसे कैलकुलेट करा? You have simply subtracted 8 minus 5, that comes out to be 3। And what about this particular length? ये length कितनी हो गया आपके पास? 4. 4. 4। So if we consider the following right angle triangle, जो कि ऐसा कुछ ड्रॉ हो रहा है, मैं सेपरेटली ड्रॉ करूं, जो कि ऐसा कुछ ड्रॉ हो रहा है, in which this angle is 90, this side is 3, this is x जिसकी है हमें तलाश, और ये साइड है 4 जो है हमारे पास। अब आप अकॉर्डिंगली भाई इसको अगर लेबल भी कर दें तो दिस लेबलिंग विल बी लाइक दिस, x in the following situation will be considered as hypotenuse, this in the following condition will be considered as
adjacent and this will be considered as opposite. Agree? ऐसा ही है. तो adjacent opposite भी आप accordingly लेबल कर देंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे. बता दो भाई, क्या लिख सकता हूँ? आप डायरेक्टली लिखवाओ. एक्स स्क्वायर इज इक्वलेंट टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. भाई जरूरी थोड़ी है बार बार फॉर्मूला लिखें आप. मेक सेंस? अग्री? Yes. अग्री. सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कम्स आउट टू बी 9, 4 स्क्वायर कम्स आउट टू बी 16. So on simplification, x square value is 25, and for finding the value of x, you have to apply 5. square root on both sides. So the value of x for the following situation comes out to be 5. Am I clear? पक्का पक्का. x की वैल्यू आपके पास फाइनली 5 आ गई. क्लियर है बेटा? देख लें स्टार्ट से लेके एंड तक. Any problem, any confusion, anything that needs to be repeated? Agree? No. Okay, bhai. Now moving towards couple of question in which composite figures are drawn for you. अब सर what are composite figure? Composite figure की भी कुछ बात कर लेते हैं. एक क्वेश्चन कराऊंगा बस मैं लास्ट. What are composite figures? Composite figures are the figures in which two or more triangles are drawn in combination. अब भाई देखो ना, composite figure actually दिखती कैसे. For example, this is the shape that is drawn for you, in which this is 90. Examiner ने proper label भी करके दिया हुआ है कि भाई this angle is 90, this angle is 90. Examiner has written कि भाई this side is 8 up till here, this side is 6 up till here, and this is let's say 10. Examiner कह रहा है x calculate कर लो. अब सवाल ये है कि if you are interested to find the value of x, find the unknown variable x, so it means you have to consider the following right angle triangle. Yes or no? ऐसा ही है? बोलो. और अगर Yes. इस राइट एंगल Yes. ट्राइंगल को यूज करोगे तो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस राइट एंगल ट्राइंगल को सेपरेटली ड्रॉ भी कर लें तो दिस राइट एंगल ट्राइंगल लुक्स लाइक दिस कि दिस इज एक्स, दिस इज 6. यू आरंट अवेयर अबाउट द फॉलोइंग लेंथ. ये लेंथ पता ही नहीं है. तो ये लेंथ फाइंड आउट करने के लिए यू हैव टू कंसिडर दिस ट्राइंगल, दिस पोर्शन ऑफ ट्राइंगल. बात समझ रहे हो? तो आप क्या करते हैं, दो ट्राइंगल की हेल्प से अननोन साइड्स को अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर रहे होते हैं. मुझे बता दो, इफ आई लेबल द फॉलोइंग साइड एज y, तो y की वैल्यू कैलकुलेट करा सकते हो? बोलो. y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे? Yes. भाई y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वी विल बी कंसीडरिंग द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल. अच्छा देखें, इस राइट एंगल ट्राइंगल को बस डायरेक्टली लिखवा दें. कैन आई राइट इट लाइक दिस? अब देखो, बार बार हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट, ऑपोजिट लेबल करने की जरूरत नहीं है. आपने अपने पास से इसको y एज्यूम करा है. मुझे बताओ व्हाट इज द ग्रेटेस्ट साइड? ग्रेटेस्ट साइड फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल दैट आई हैव लेबल्ड विद रेड इज 10. ऐसा ही है. सो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर. यस और नो? बोलो. ऐसे ही होगा. Yes. इट Yes. मींस यू हैव कंसिडर्ड द फॉलोइंग ट्राइंगल. और खुद सोचे ना, अगर इसको सिंपल कर लेंगे तो 10 स्क्वायर कम्स आउट टू बी 100, दैट इज 8 स्क्वायर इज 64 प्लस y स्क्वायर. और अब इसको सिंप्लीफाई करा लें, दैट इज 100 माइनस 64 is equivalent to y square. The value of y comes out to be 6. 6. You are going to apply square root on both sides. So finally the value of y comes out to be 6. Now हमें y थोड़ी find out करना था. y तो हमने अपने पास से suppose करा था ताकि solve कर सकें. Now you are going to substitute the value of y right here to solve the following triangle. तो भाई y की value हमारे पास 6 आ रही है, तो it means this side will also be 6. इसका मतलब ये बनने वाला राइट एंगल ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल. क्या कहते हो? यस और नो? द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल विल बी Yes. आइसोसेलेस राइट एंगल ना. अब मुझे बता दो, अगर x Yes. कैलकुलेट करना चाहते हो तो लेबलिंग करने की कोई जरूरत नहीं है. बताओ भाई क्या लिखूंगा? ग्रेटेस्ट साइड इन द फॉलोइंग केसेस व्हाट? x. यस और नो? बिकॉज दैट इज अवर हाइपोटेन्यूज. x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर. 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर कम्स आउट टू बी 36 plus 36. 36 plus 36 मतलब 72. That is your x square. So the value of x square in the following situation is 72. और 72 का आपने कैलकुलेट करना पड़ेगा रूट, स्क्वायर रूट ऑफ 72. दो ऑप्शन. ऑप्शन नंबर 1 आप डायरेक्टली लिख लें कि भाई x की वैल्यू स्क्वायर रूट 72 आ गई.
This will be considered as your final answer for the following situation. And option number 2, if this question is of paper 2, तो पेपर 2 में आप स्क्वायर रूट 72 की वैल्यू कैलकुलेट करके लिख देंगे इन डेसिमल, जो कि लगभग 8.5 तक ही कुछ आ रही होगी. एम आई क्लियर? पक्का पक्का अग्री? अग्री? ओके. Yes. लेट मी जस्ट पॉज द रिकॉर्डिंग. आपको एक दो बातें बता के फिर एंड करूं. Here we are. Stop recording. Stop presenting.